عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد نے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سستے رمضان بازار لگائے ہیں، جن میں ریٹ لسٹیں بھی آویزہ کی گئی ہیں اور ان پر عمل درآمد کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب صارف اور اسٹال ہولڈرز دونوں شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ صارف کہتا ہے کہ اسے کم قیمت میں گلی سڑی سبزیاں اور پھل بیچے جا رہے ہیں، جبکہ اسٹال ہولڈر کہتا ہے کہ اسے بچت ہی نہیں آ رہی۔ کیا یہ اسٹال ہولڈرز اور انتظامیہ کی ملی بھگت ہے یا انتظامیہ کی نااہلی ہے؟ آئیے جانتے ہیں شہریوں سے اور اسٹال ہولڈر سے۔ ٹھیک ہے سر، یہاں سے آپ کیا خریداری کرنے آئے ہیں اور کیا بھاؤ تاؤ یہاں آپ کو معلوم ہو رہے ہیں؟ سر ہم تو ماشاءاللہ پچھلے کوئی 6-7 سال سے یہاں خریداری کر رہے ہیں اور یہااں سے سبزیاں بھی ہم لیتے ہیں، فروٹس وغیرہ بھی لیتے ہیں، لیکن ہمیں ایشو یہ آ رہا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ٹماٹر کا ریٹ جو تھا وہ 47 روپیز چل رہا تھا۔ ابھی اسٹاک میں جو ان کے پاس ٹماٹر اتنا زیادہ پڑا ہوا تھا لیکن کسی بھی کسٹمر کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ انہوں نے شاپر لگائے، شاپر 5-5 کے جی کے باندھ کے انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیے۔ جو بھی کسٹمر جا رہا انہوں نے کمپلین کی کہ جی آپ کے پاس پڑا، یا تو آپ سامنے نہ رکھیں اس کو، اور یا تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو بیچیں، کیونکہ کسٹمر کے لیے لایا جاتا ہے جتنا بھی سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، جو کچھ بھی ہے۔ لیکن ہمیں یہ ہوتی ہے کہ اب ہمیں جو چیز چاہیے وہ چیز ان کے پاس اویلیبل ہے اور اس کے باوجود ہم تک وہ نہیں پہنچ رہی۔ یہ بتایا کہ ایک چیز اور بہت اہم ہے یہاں پر جو صارف شکوہ کر رہا ہے کہ یہاں کم ریٹس ضرور ہیں لیکن گلی سڑی سبزیاں اور پھل بیچے جا رہے ہیں۔ سر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو منڈی سے اٹھا لیتے ہیں مال، اب مجھے نہیں پتا ان کو سستا مل رہا ہے مہنگا مل رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ابھی موسٹلی جو انہوں نے سامنے لگایا ہوتا ہے وہ بالکل صاف رکھا ہوتا ہے، لیکن پیچھے انہوں نے گلا سڑا فروٹ رکھا ہوتا ہے۔ جب کسٹمر لینے جائے گا تو وہ جب چیک کرے گا تو اس میں آدھے سے زیادہ خراب چیزیں نکلیں گی۔ ریٹ تو انہوں نے سستے لگائے لیکن وہ سستی چیزوں میں آپ کو وہی فروٹ دے رہے ہیں جو کہ گلا سڑا ہے واقعی میں۔ آپ جو ڈسپلے میں دیا جا رہا ہے وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ موسٹلی دکاندار یہ ہوتے ہیں کہ یا تو کسی باہر کسی شاپ کیپر کو دے رہے ہیں، لیکن جو کسٹمر ہے وہاں ان تک یہ نہیں پہنچ رہا۔ آپ کا کیا مطالبہ کیا ہے اور سجیشن کیا ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے، حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، اگر کو انہوں نے یہ سستا بازار لگایا ہوا ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز فراہم کی جائے جو کہ جس کا ریٹ چل رہا ہے، ایکچوئل میں جو ریٹ چل رہا ہے، اور جو چیز سستی مل رہی ہے وہ اچھی بھی ہونی چاہیے۔ اگر اچھی نہیں مل رہی تو وہ چیز ہی نہ دی جائے۔ آئیے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ گاہک بھی نظر نہیں آ رہے، جو نظر آ رہے ہیں ان کا بھی شکوہ ہے کہ یہ یہ بازار ناکام ہے۔ اس پہ روشنی ڈالیے گا یہ کیسے ناکام ہے؟ سستے بازار کا مطلب ہر بندے کو سمجھ آنا چاہیے کہ ریلیف غریب آدمی کو ملے۔ یہاں تو سستے بازار کھولنے کا مقصد ہی کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ نے چیزیں تو مارکیٹ سے بھی زیادہ ریٹ لگا دی ہیں، اور مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو چیزیں وہ تو مارکیٹ سے سستی ہونی چاہیے یہاں پہ۔ لیکن آپ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی آج تک جتنی حکومتیں آتی ہیں اور یہ صرف بولتی ضرور ہیں کہ ہم جی ریلیف دے رہے ہیں۔ ریلیف کیا دے رہے ہیں آپ؟ نے مرغی کا 600 روپے اوپر لے جا کے آپ نے 20 روپے ڈسکاؤنٹ کر دی گئی۔ کیا وہ نسوار کھاتی ہے قوم؟ 10 روپے 20 روپے کی تو نسوار ہی آتی ہے، سبزی تو نہیں آتی کوئی بھی، نہ ہی مرغی آتی ہے۔ آپ نے 20 روپے 10 روپے چینی کا لگا دیا ڈسکاؤنٹ۔ یہ میرا خیال ہے کوئی اسٹوپڈ کسی بھی دنیا کے اندر کوئی اتنا کوئی بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہے کہ 50-60 روپے آپ نے اوپر لے جا کے پہلے اس کے بعد 10 روپے ڈسکاؤنٹ دے دیا۔ یہ آپ ریلیف کہتے ہیں اس کو؟ سر ان بازاروں میں تو ریٹ لسٹیں لگی ہوئی ہیں، بہت واضح فرق ہے مارکیٹ سے۔ آپ ریٹ لسٹوں پہ کیا چیز ہے؟ ریٹ لسٹوں پہ کیا چیز ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ان چیزوں کو؟ آپ منڈی میں جائیں، منڈی میں ریٹ کیا ہے اور یہاں پر کیا ہے ریٹ؟ آپ نے کیریج کو تو ختم، آپ نے مہنگائی کر دی ہے، پیٹرول کی ریٹ اوپر چڑھا دی ہے، تو کیا وہ جو لے کے آ رہے ہیں وہ گدھے گاڑی پر تو نہیں لے کے آئیں گے نا، وہ تو پیٹرول گاڑی بھی یوز کریں گے۔ اور وہ جو کھال اتارتے ہیں اپنا گاڑیوں والے وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ آپ نے لگا دیا ریٹ جو ان کو پڑتا ہے وہ 60 روپے پڑتا ہے، آپ نے ان کو لگا دیا 45 روپے، تو یہ بیوقوفی نہیں ہے؟ اب وہ کرایہ جو دے کے آ رہا ہے وہ اپنے کندھوں پہ تو نہیں اٹھا کے آ رہا ہے نا، وہ بھی پیٹرول پہ۔ آپ پیٹرول سستا کریں نا، جو سب سے بڑی چیز ہے وہ پیٹرول سستا کریں، جو کیریج ان کو پڑ رہا ہے وہ ڈبل پڑ رہا ہے ان کو۔ تو آپ اپنی سینس پتہ نہیں کون سی بھینس کالونی کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ پتہ نہیں کون بھینس کو گوشت کھانے والے ہیں، بھینس کا دودھ پینے والے ہیں کہ موٹے دماغ کے لوگ ہیں، اور آپ کے پاس اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کے وہ جو تنخواہیں اور جو مراحت لیتے ہیں ان کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا۔ سر ان بازاروں کے متعلق جو ہے وہ گاہک سراپا احتجاج ہے کہ ہمیں مکس کر کے مال دیا جاتا ہے، جبکہ جو اسٹال ہولڈر ہیں وہ رو رہے ہیں کہ منڈیوں سے کنٹرول ریٹ نہیں۔ یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے۔ جس کی بھی آنکھیں دماغ اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا، اس اسٹوپڈ آدمی کو وہ اسٹوپڈ کہتے ہیں یہ لوگ۔ آدھے سے زیادہ فروٹ، ٹماٹر، سبزیاں آپ آنکھیں کھول کے دے لیں، آدھے بوری کے اندر آدھے سے زیادہ خراب ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ کنٹرول پیچھے کریں نا،
आप जो सामान जो बेचारा लेके आ रहा है, फ्रूट लेके आ रहा है, सब्जी लेके आ रहा है, वो ख़राब आधा तो पीछे से आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 45 रुपये लगा के आपने कौन सा एहसान किया? उस बेचारे को तो वो 100 से ऊपर पड़ रहा है। एक चीज़ और स्टॉल होल्डर्स के साथ जो इनके साथ इस्तेहसाल होता है इनका, कि शाम को ये जो इंतज़ामिया है वो भी अपने थैले भर के लेगी। वो हमारी नेचर में है, ये हमारी उसमें है, मुनाफाखोरी में भी है, ये एहतसाल नहीं मैं इसको कहता, ये हमारी औकात है कि हमने खाना इसी तरह ही है। तनख्वाह चाहे 1 लाख की हो चाहे 2 लाख की हो, लेकिन खाना हमने भीख मांग के ही है। ये गवर्नमेंट मुलाजिम जो है ये असल में यहाँ की जो ना बोझ है हमारे को, हमारे मुल्क के ऊपर बोझ है। मैं तो कहता हूँ कि इनको आर्मी के अंडर में देना चाहिए। ये सिविलियन के अंडर ये रहने वाले लोग नहीं है ये गवर्नमेंट मुलाजमीन, क्योंकि ये 24 घंटे इनकी नज़र होती है कि 1.5 लाख तनख्वाह लेके भी इनको कोई ना कोई किसी दुकानदार से लेके ही खाना होता है। तो ये आप कैसे रोक सकते हैं? ये तो मुल्क के खून के अंदर शामिल हो चुकी है, तो आप कह रहे हैं ख़त्म हो जाए, वो मर नहीं जाएगा वो बेचारा। कार में आपका स्टॉल है, आप दस्तरखान बेचते हैं कपड़े के और शीट्स बेचते हैं, बताइएगा कि यहाँ पर आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और आवाम का जो है वो कितना फीडबैक है यहाँ पर? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे महंगाई की शरह में कोई कमी नहीं आई है। ग्राउंड पे आप जाएंगे तो आपको सारा कोई नज़र आता है। आप फील्ड में होते हैं, आप सब्ज़ी वाले से भी मिलते हैं, कपड़े वाले से भी मिलते हैं, शीटों वाले से भी मिलते हैं, डिफरेंट लोगों से आप मिलते हैं। आपको खुद आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का कि कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम इधर बैठे हुए कस्टमर आपके सामने है, ये रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, तो कोई ख़ास कस्टमर भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रेट हम 60-65 रुपये गज़ लेके आते थे एक चीज़, वो तकरीबन 210-250 रुपये गज़ पे चली गई हुई है। तो हम कस्टमर से रेट मांगते हैं तो वो गाहक छोड़ के चला जाता है। तो इतना कोई ख़ास इसमें मुनाफा या कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे बैठ के। बस ये है कि टाइम ज़ाया हो रहा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हम मज़दूरी करें, अपना काम करें, लेकिन हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं है। इधर बैठे रहते हैं, पूरा दिन चले जाते हैं, तो कोई भी इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई मज़दूरी अच्छी हो रही हो। ज़िला इंतज़ामिया का दावा है कि ये स्टॉल जो है इतने सस्ते दिए जाते हैं कि आम आदमी इसे अफोर्ड करके किराया ज़्यादा नहीं होता तो कम मुनाफा पे चीज़ें बेच सकता है। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? सर आपको पता है ये सालाना इसका कोई टैक्स होता है, वो तो पे करते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि काम पे डिपेंड करता है। आपका काम ही नहीं होगा तो आपको वो भी दुखेंगे। यहाँ पे जब लोग आपके साथ आते हैं, इधर स्टॉल लेते हैं, इधर आके आपके एक्सपेंसेस इतने होते हैं, आपका खाना होता है, आने जाने का ख़र्चा होता है, आपकी सैलरी 2-3 हज़ार रुपया हो तो आपने क्या घर लेके जाना है? अपने बच्चों के लिए क्या लेके जा सकते हैं? कुछ भी नहीं होता। स्टॉल का होता है, लेकिन ये चीज़ है कि टैक्सेस वगैरह उसके बाद डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी के ऊपर। कि ये सस्ते रमज़ान बाज़ार पूरा रमज़ान खुले रहेंगे, बाकायदा CDA ने इसका इंतज़ाम किया है, लेकिन शहरी जो सारिफ है यहाँ पर वो जो है वो शिकवा करता दिखाई देता है कि माल ठीक नहीं है, ये मिक्स। दूसरी तरफ जो स्टॉल होल्डर है वो बेचारा रोता है कि हमें मंडी से महंगा मिलता है और यहाँ सस्ता बेचना पड़ता है। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ुद भी CDA का एम्प्लॉइज़ हूँ और ये बात इनकी जो शहरियों की जो गिले शिकवे बजा है, इसलिए कि अगर हम अव्वल नंबर पे जाते तो वो इतनी डबल कीमत लगाते कि उसमें हमारे कोई ख़रीद में नहीं होते, और जो 2 नंबर वहाँ पे लिखा होते तो हमारे खाने के काबिल नहीं होते। तो हम जो है ना परेशान हो जाते कि अगर अव्वल के हमारे पास हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और सेकंड नंबर जो है ना वो हमारे खाने के मुझे रसीखत होते तकरीबन। तो रेट हर बंदा ये कहते कि थर्ड पार्टी यहाँ पे जो है ना वो कमाते हैं, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को बीच में निकाल दे, इसे इंतज़ामिया को थोड़ा सा पीछे चले जाए, जहाँ से माल आता है वहाँ पे भी इंतज़ामिया बैठे, वहाँ पे भी DC DPO सब कुछ बैठे होते हैं जो उन मंडियों से बेचते हैं, तो वहाँ पे भी रेट का जो ना वहाँ पे इसको पे नज़र रखें और मार्केट तक पहुँचने पे भी नज़र रखें, तो इंशाल्लाह फिर इतने मसाइल नहीं होंगे। बाकी अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करें, हम गरीब मुल्क में रहते तो हमें भी गुजारा करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि मंडियों से कंट्रोल होना चाहिए। मंडियों से आप किस तरह से समझते हैं कि कैसे कंट्रोल हो सकता है ताकि आवाम को रिलीफ मिले? देखिए, मंडियों में से जब हम माल उठाते तो उनके बहुत सारे जो है ना बातें आ जाती बीच में कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बढ़ जाता है,
यहाँ से जो बर्दारी होती है, मजदूरी होती है, वो भी बढ़ वो भी लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जो उसका जो अपना रेट, अभी जब हम यहाँ कुछ चीज़ें हम यहाँ से ख़रीदते हैं और मेन मंडी से ख़रीदते हैं तो उसमें तकरीबन कोई 40-50 रुपये का फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को अगर वो मंडी का रेट यहाँ पे भी उसको थोड़ा सा उसमें मार्ज रख के या आम सार्फ के लिए, तो फिर ये इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। इसलिए कि मंडी की रेट भी इसी ज़िले में, इसी पंजाब की या एक ही सूबे में जो ना आ जाते हैं, तो वहाँ पे उनको भी कमीशन जाते हैं ना, कमीशन एजेंट वो उसमें कमीशन लेते हैं। तो वहाँ के मार्च को थोड़ा सा यहाँ पे मार्ज रखे जो यहाँ पे सार जो मजदूरी करते हैं। लेकिन ये है कि अभी यहाँ मन मर्जी चलती है। अगर मैं कहता हूँ कि यार ये इतने का नहीं है, ये इतना का नहीं देना, तो कहते जाओ फिर नहीं लेना। मेरी तो मजबूरी है ना, मेरे घर में बच्चे मेरे तो उनको खिलाना है, उनके लिए लेके जाना है। तो ये कि फिर इन पे ये थोड़ा सा दबाव रखे कि आप जो मार्ज हम रखते हैं वह रखते। एक दिन इस तरह हुआ कि मैं यहाँ से कोई सी चीज़ ले रहा था, तो उस टाइम मैंने जब लिए तो वो 288 रुपये का वो दर्जन माल्टा दे रहा था। तो इतने में एसी साहब आ रहे थे, इनको पता चला कि एसी साहब आ रहा है, तो 288 रुपये का मुझे दे रहा था, वहाँ पे 250 का रेट लगा हुआ रहा। इनके पास डबल कागज़ पड़े होते हैं। तो जो यहाँ इंतज़ामिया, बाज़ार की इंतज़ामिया, वो इनसे ये भी चेक करें ताकि आपने जो हमारे सामने जो लिस्टें लगाते हैं रखते हैं वो कौन सी है और जो आवाम को दे देते हैं। इसलिए कि ऐसी सब 24 घंटे तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसके कुछ बंद अपने साथ लगाएं तो उसके लिए बाज़ार का विजिट भी आसान हो जाएगा और लोगों की रेट जो है ना वो भी मुनासिब और जो हुकूमत की तरफ से होगा वो उनको जो है ना मैसर होगा। आपने एक अहम बात की कि जिस तरह से मंडियों को कंट्रोल किया जाता है, किया जाना चाहिए, उसी तरह यहाँ पे मौजूद जो इंतज़ामिया के लोग हैं इनको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसलिए कि अगर एक रेट जो हमें लिस्ट पे मिलता है, हर बंदा तो नहीं पड़ता है ना, इतना टाइम होता है, कभी कभी पढ़ते तो उसमें मिलता नहीं है कि मैंने मटर लेना है तो मटर पता नहीं कहाँ लिखा है, तो या मैंने फ्रूट लेना है तो केला कहाँ लिखा है, अमरूद कहाँ लिखा है। तो जब मैंने जो बात की ना, ये मेरे साथ हुआ है कि यानी एक जो लिस्ट लगा हुआ था जो वहाँ पे लगा हुआ था, जब इनको पता चला वो उसको बेचने वाले को कि तो एसी साहब आ रहा है, तो उसने उसको चेंज कर दिया, उसको छुपा दिया, वो जो असल रेट लिस्ट था उसको लगा दिया। हमारी जो है ना वो सबसे ज़्यादा करप्ट है। ये करते हैं कि रेट कुछ और लगाते हैं। जब मैं अभी ये जो लिए हैं सेब, तो ये 200 रुपये किलो दिए हैं, हालांकि इसका रेट 168 रुपये या इस तरह कुछ लिखा हुआ होता है। तो मैंने इनसे पूछा भी है तो कहते हैं जी ये बस इस तरह हमें पीछे मंडी से आते हैं, तो फिर रेट क्यों लगाया है इन्होंने, या तो रेट ना लगाए। दूसरा ये करते हैं कि सामने जो है ना कुछ और लगाते हैं, देते कुछ और हैं, वो अपनी मर्ज़ी का ऐसा बुरा देते हैं जो बंदा घर में जाके शर्म आती है उसको खोल के देखते हुए। तो ये ख़ुसूसन मेजॉरिटी यही इसी तरह है। बाकी ये जो है ना फ्रूट कुछ दिखाने के लिए रख लेते हैं सामने कि ये बड़ा अच्छे हैं, देते बिल्कुल थर्ड क्लास चीज़ है ये। वैसे इसका कोई हिसाब करना चाहिए, इनको चेकिंग करनी चाहिए, सबको करते भी हैं, लेकिन अवाम इस तरह मेरे ख्याल में ये जो है ना हद हराम हुई है कि बेचते कुछ और है। ये बहरहाल अब क्या इनके स्टॉल होल्डर से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी इतने पैसों में मंडी से ही ऐसा माल मिलता है। यही तो इनका भी इशू है, लेकिन कोई प्रॉपर होना चाहिए ना इसका सदबाब कि आवाम को तो ना लूटे ना, आवाम तो लूटी जा रही है। तो इसका कुछ होना चाहिए, अथॉरिटी को भी देखना चाहिए, उनको शिकायत भी करें, उनको भी आते हैं जुर्माने करते हैं, लेकिन कोई इनका आवाम वही करती है जो कर रही होती है। इनके ज़्यादातर एक नहीं होते 10, तो ये फिर सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं, एक बंदा क्या करेगा वहाँ पे। तो ये असल इशू है, जहाँ भी देखेंगे यही इशू है। मेन पर दूसरे बाजारों में जाएं तो और ज़्यादा लूट है। आपका कहना है कि रेट्स कम है तो माल भी उसी तरह नाकिस ही दिया जाए। यही इशू है ना कि रेट इनको ने ये यहाँ पे लगाए इस तरह होते हैं कि माल बिल्कुल थर्ड क्लास बेचते हैं, चाहे इनको 500 रुपये रेट लगाएं तब भी बेकार देंगे, इनकी आदत है ये। बताइएगा कि आपने यहाँ से सब्जियाँ और फल ख़रीदे हैं सस्ते रमज़ान बाज़ार से, कहाँ क्या इनमें चीज़ें वाकई सस्ती और मयारी हैं? सर ऐसा है कि चीज़ें तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर है ऐसे चाल इस तरह है कि आगे कोई थोड़ा सा अच्छी चीज़ रखी है, पीछे जो सारा वो मिक्स रखा हुआ है, तो रेट तो ज़ाहिर है जिसको भी हाथ डालते हैं तो वो कहते हैं नहीं यार भैया मिक्स देंगे,
आप मिक्स जब लेते हैं तो फिर वही साफ हो जाता है, तो इससे बेहतर है फिर बंदा मार्केट में थोड़ी सी अच्छी सी ले ले तो फिर चीज़ अच्छी मिल जाती है, बस यही बात है बस। इनका दावा है स्टॉल होल्डर्स का कि हम सस्ती भी बेच रहे हैं और हालांकि हमें मंडी से जो है वो महंगी मिलती है, फिर भी हम यहाँ सस्ती बेच रहे हैं। भाई ये कैसे हो सकता है कि यार मैं 10 रुपये की वहाँ से चीज़ लेके आऊँ और मैं यहाँ से आगे 5 रुपये की बेचूँ? ज़ाहिर है मुझे भी पेड़ लगा है, मैं भी घर जाके बीवी बच्चे हैं उनके साथ लेके जाऊँगा तो मैं कैसे ये पूरा करूँगा? आप खुद सोचिए, ये ऐसे हो सकता है भला? कभी मुमकिन ही नहीं है। अगर इनको कुछ उधर से कुछ मिलता है तो फिर इधर से भी कुछ निकालते हैं, फिर जाके कहीं काम चलता है, बस इस तरह। बाज़ारों में शहरी तो काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कुछ ना कुछ तो रिलीफ होगा ही आए। सर मैंने पहले भी यही अर्ज़ किया है कि रिलीफ यही है कि आगे और चीज़ लगी हुई है, पीछे उन्होंने मिक्स लगाई हुई है, बस ये चीज़ है, बस और तो कुछ भी नहीं है। बाकी अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। बस रमज़ान इंतज़ामिया और हुकूमत से क्या मुतालबा है? सर उनका यही मुतालबा है कि आप अपनी कुर्सी छोड़ के आप बाज़ार में आए, थोड़ा सा विज़िट करें, आपको खुद इस चीज़ का पता चल जाए कि भाई रिलीफ है या नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा सब कुछ। आपका कहना है कि गली सड़ी सब्जियां और फल सस्ते बेचे जा रहे हैं जो कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं। जाहिर है भाई, टाइम भी पता कितना टाइम गुजरता है, कितनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो फिर लीव ही ना मिले तो यहाँ पे आने का फ़ायदा क्या है? ये मुझे बता दें बस। कोई फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा भी नहीं है। इससे भी बेहतर है कि बंदा 20 रुपये महंगी मार्केट से ले ले। मार्केट वाला का भी यही हिसाब है, ना कोई पूछ गिछ कोई है ही नहीं है। कभी कभार कोई बंदा आ जाए पूछने वाला तो वो सीढ़िया का रेट लगा लेते हैं, नहीं तो रेट उठा के पीछे रखते हैं, बस अपनी मन मर्जी कर रहे होते हैं। बस अल्लाह हिदायत दे हम सबको, बस और तो उसकी बात नहीं है। सस्ते रमज़ान बाज़ार शहरियों की सहूलत के लिए लगाए गए हैं। आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर किस हद तक रिलीफ आपको नज़र आ रहा है? सर रिलीफ तो हमने कहीं और कुछ तो नहीं देखा, लेकिन एक ये फ्रूट में बाहर जो यानी कि 300 साढ़े 300 केले का रेट है, यहाँ 240 और 40 का रेट है। ठीक है, अभी मैं बाहर से पपीता पता करके आया हूँ, वो तकरीबन 400 साढ़े 400, यहाँ 340 का रेट है। तो इन चीज़ों में कुछ फ़र्क है। बाकी सब्ज़ी वगैरह जो G9 में कुछ और भी मरकज़ लगे हैं, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। बाकी सामान वगैरह और तो इतना फ़र्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये रमज़ान तक ही है, उसके बाद आपको पता है कि फिर दोबारा वही होना है हिसाब किताब। शहरियों का यहाँ शिकवा जो है वो है कि यहाँ पर सस्ते बाज़ार में रेट्स कम है, लेकिन जो सब्जियाँ और फल है वो गली सड़ी मिक्स करके दी जाती हैं, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ बाहर जो टमाटर मिलते हैं और यहाँ जो रेट है ना, यहाँ मैं आता रहता हूँ तो यहाँ टमाटर पहले जो लेते थे, यानी कि जैसे सरकारी रेट है 57 या 40-60 रुपये, लेकिन आप अगर 10 रुपये ज़्यादा देंगे तो चीज़ अच्छी मिलेगी। अगर सरकारी रेट पे लेंगे तो आपको वो मिक्स मिलेगा, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। स्टॉल होल्डर कहते हैं कि हमें कम रेट पे बेचने के लिए मंडी से महंगा मिलता है तो हमें इस तरह देना पड़ता है मिक्स करके। बस सरकार तो कहती है कि हम जो ना सस्ता दे रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं देखती कि सरकारी रेट में क्या चीज़ दे रहे हैं हम। ठीक है ना, अगर आप 10 रुपये ज़्यादा देंगे तो चीज़ अच्छी मिलेगी, और अगर सरकारी रेट पे लेंगे तो आपको चीज़ 2 नंबर ही मिलेगी। ये बात सही है उनकी। तो फिर आपका क्या मौक़िफ़ है कि फिर इससे बेहतर है कि आप अपनी मर्ज़ी का चुन के मार्केट से लेना पसंद करेंगे यहाँ से? सर इसमें मजबूरी है हमारी, ठीक है ना सर, इसमें मजबूरी है, क्योंकि अगर हम सरकारी रेट पे लेंगे तो हमें वही, अगर सस्ते पे हम देखेंगे ना तो वो चीज़ जो ना हमें कुछ ख़राब, आधी चीज़ उसमें ख़राब निकल जाएगी और आधी चीज़ जो ना हमें सही मिलेगी। ये बात सरकारी रेट पर आपको पता है कि ख़राबी मिलती है। हुकूमत से क्या मुतालबा आपका इंतज़ाम? हुकूमत से हम यही कहेंगे कि जो चीज़ यानी कि सरकारी रेट पर रेट सही करना चाह रहे हैं तो चीज़ भी यानी अच्छी देना चाहें। ये ना होना चाहिए कि सरकारी रेट पे चीज़ ख़राब दें और अगर 10 रुपये ज़्यादा दें तो चीज़ जो ना अच्छी मिले। ये इसमें फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। पीए की जानिब से बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बाज़ार लगा दिए हैं और हर रोज़ खुले रहते हैं। कितना रिलीफ आपको यहाँ मिल रहा है? कुछ भी नहीं रिलीफ मिल रहा, कुछ भी। वहाँ बंदा अपनी मर्ज़ी से ले लेता है मार्केट से, अच्छा फ्रूट भी उठा सकता है फ्रूट। यहाँ तो वो कोई भी नहीं, अपनी मर्ज़ी से वो देते हैं, कोई रिलीफ नहीं है, रेट भी वही है। यहाँ रेट लिस्टें लगी हैं, उनके हिसाब से नहीं देते? नहीं, मार्केट का भी यही है रेट, मार्केट रेट है ये भी, वहाँ भी वो यही दे रहे हैं। एक चीज़ और काबिल ज़िक्र है, बताइएगा कि यहाँ स्टॉल होल्डर्स कहते हैं कि हमें मंडी से महंगा मिलता है फिर भी हम यहाँ सस्ता बेचते हैं। सर ये नहीं हो सकता है, कौन ऐसा है जो इधर से आके सस्ता दे? ये हो सकता है? ऐसी नहीं बात। वहाँ इनको काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्यों नहीं मिलता? लेकिन एक हकीकत नहीं है कि जो मार्केट में केला 250-300 का बिक रहा है वो यहाँ पर 200-210 का इस तरह नहीं है। वो इधर देखिए 250 के दे रहे हैं, वो भी एक ही रेट है, कोई फ़र्क नहीं है ख़ास। आपका कहना है क्वालिटी में भी फ़र्क है? क्वालिटी में फ़र्क है ना, ये देखिए अब ये केला 250 रुपये दिया, क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। सर कुछ ना कुछ रिलीफ तो है ना जिसकी वजह से आवाम? सर रिलीफ तो है, लेकिन लोगों के ज़हन में तो है कि कम रेट है
वहाँ जो छोटी मार्केट में बैठे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा लोग इकट्ठा ले लेते हैं, चले एक जगह से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फ़ायदा ये है बस। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि इस बाज़ार को बेहतरी के हवाले से क्या इक़दाम किए जा सकते? सर बेहतरी के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले तो क्वालिटी अच्छी करें ना। ये यहाँ जो टमाटर है वो कम रेट वाला आया हुआ है, वहाँ से अच्छा भी है जो वहाँ मार्केट में बिक रहा है। ये गाजर देखे पुरानी गाजर लाते हैं तो पुरानी गाजर तो नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, रमज़ान बाज़ार में आपको किस हद तक रिलीफ मिल रहा है यहाँ मार्केट की निस्बत? सर मार्केट की निस्बत बहुत बेहतर है, और ये फ्रूट भी और वो सब्ज़ी वगैरह भी काफ़ी कम रेट हैं, 10 या 20 रुपए कम है। अभी ये रिसेंटली मैं अभी घूम रहा था, ये फ्रूट का रेट पूछ रहा था तो तकरीबन बाज़ार से 20-30 रुपए कम है जी। लेकिन यहाँ पर अक्सर शहरियों का जो शिकवा है कि यहाँ मिक्स माल दिया जाता है और नाकिस फ्रूट और सब्जियाँ दी जाती हैं। हाँ ये बात भी है, लेकिन वो मसला ये है ना कि अब वो जो लेके आते हैं तो ज़ाहिरी बात उन्हें मिक्स ही देना है। जो रेट CDI वालों ने मुख्तस किया हुआ है तो उस पर तो वो इतना नहीं हो सकता ना। लेकिन लोगों को बेहतर है ये कि अच्छी चीज़ है, ये दे रहे हैं जो चीज़ अलग अलग रखा हुआ है, जो आप चीज़ लेंगे वही आपको मिलेगी। आप वाली बात है कि स्टॉल होल्डर्स भी यही रो रहे हैं कि हमें वहाँ से महंगी मिलती हैं लेकिन मजबूरन सस्ता भी। जी मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने भी तो मिक्स करके ही देना है ना। फिर इसमें तो हमें वो नहीं करना चाहिए कि जी हमें अच्छा वाला चाहिए तो इतने पैसों का हमें 200 रुपये दर्जन दे दें, नहीं ये नहीं हो सकता। आप तो बहुत तअम्मुल से बात कर रहे हैं लेकिन शहरी जो है वो तो इनके गले पड़ते हैं कि भाई हमें अच्छा ही दो, अच्छा सामान ही चाहिए। मैं तो तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ, मुझे तो कोई वो बाज़ार से तो कम मिला रहे। यहाँ स्टॉल होल्डर्स जो हैं वो रो रहे हैं कि हमें मंडियों से महंगा सामान मिलता है फिर भी सब्सिडाइज रेट पे बेचना पड़ रहा है, जबकि दुकानदार जो आप जैसे शुराफा यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं वो भी कहते हैं कि हमें चीज़ें महंगी मिल रही हैं या नाकिस माल मिल रहा है। असल में बात यह है कि इसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस करना चाहिए महकमे को, CDA को, और CDA वाले आके बैठ जाते हैं अपने ऑफिस में, और ये लोग जो है इनको तो घर से तो कोई बुलाता है नहीं कि भाई आप आए और आप यहाँ आके बड़ी कौम की खिदमत करें। तो ये कौम की खिदमत तो नहीं, हर आदमी अपने पेट के लिए लगा हुआ है, और जो उनके बस में है CDA के वो करती नहीं है, और जो इनके बस में ये खुद अपने करते हैं वो जो इनके मनमानी रेट होते हैं। लेकिन बहरहाल बाज़ार से फिर भी काफ़ी बेहतर है, क्वालिटी नहीं है लेकिन रेट जो है वो अगर कोई बंदा सही उसको रेट लिस्ट के मुताबिक उसको इंसिस्ट करे तो ये मान जाते हैं। अदरवाइज़ जो है जो बेचारा कोई नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो जो ये रेट बोलते हैं वो उस पर मजबूर होता है लेने में। तो सर यहाँ देखा है कि यहाँ पर जो सारिफ है वो इसरार करता है कि उसे अच्छा माल दिया जाए, लेकिन ये कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमने मिक्स माल लाना है, इसी तरह से। अक्सर बात ये है कि इनको जो रेट लिस्ट दी जाती है उसमें क्वालिटी लिखा होता है, क्वालिटी नंबर 1, क्वालिटी नंबर 2, क्वालिटी नंबर 3। ये क्वालिटी नंबर 3, 4 जो है वो क्वालिटी नंबर 1 पे बेचते हैं। तो वो जो चीज़ है वो इनके अपने कंट्रोल में है और CDA के कंट्रोल में है। आदमी अगर उस पर इंसिस्ट करता है तो वो झगड़ा है, और शरीफ आदमी कहता है कि नहीं यार इस बाज़ार में घुसा ही। जब झगड़ा हो रहा तो फिर झगड़ा करने के लिए तो नहीं आता ना आदमी, अभी सौदा लेने के लिए आता है। तो तलखी कहीं बाहर की हो तो यहाँ पे आके बंदा उतारने शुरू कर दे तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये महकमे का काम होता है कि भाई उसको चेक एंड बैलेंस करे। प्राइस अपनी जगह पे है लेकिन क्वालिटी सबसे अव्वल है। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों का कहना है कि सस्ते रमज़ान बाज़ारों में गली सड़ी सब्जियां और फल खुले आम बेचे जा रहे हैं, जो कि CDA इंतज़ामिया की नाअहली या मिली भगत है और एक काबिल अफसोस अमर भी है जिसका तदारुक होना चाहिए। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक।